Welcome for our present discussion for class 12 accountancy. We were passing by the part B syllabus, analysis of financial statement. Fifth chapter was continued, accounting ratio. This is my 20th episode for the chapter accounting ratio. Accounting ratio is a technique for analyzing the financial statement of the company or business. Basically, there are four types of ratios: liquidity ratio, solvency ratio, activity ratio, and profitability ratio. Liquidity ratio, that is the current ratio and liquid ratio. Solvency ratio, that is the debt equity ratio, total assets to debt ratio, proprietary ratio, and interest coverage ratio. Activity ratio means there are four types under the activity ratio, that is inventory turnover ratio, trade receivables turnover ratio, trade payables turnover ratio, and working capital turnover ratio. Till this, total 8 to 10 types of ratios we have discussed previously, and various sums also we have done, and total 19 episodes I have taken for the chapter accounting ratio. Now I am coming before you with profitability type of ratio. Profitability ratio, under the profitability ratio there are 5 types of ratios will be coming. Why the profitability ratio is calculated? These types of ratios are calculated to see about the profit quality, about the profit situation, in which way the company is running by the profit or not, and whatever the statistical situation regarding the profit from various sides. Under profitability ratio, we will see these 5 types of ratios will be coming before us. Profitability ratio: first one, gross profit ratio; second, operating ratio; third, net profit ratio; fourth, operating profit ratio; and number 5, return on investment. ये थर्ड नंबर में जो है नेट प्रॉफिट रेशियो और फोर्थ नंबर में है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो. इन बुक यू कैन सी that in the third point operating profit ratio is discussed, in the fourth point net profit ratio discussed. But I personally believe that if net profit ratio will be discussed before the operating profit ratio, so it will be easy to the students. It's my own belief. Whatever may be, in this episode I will discuss about these 2 types of ratios: gross profit ratio and operating ratio. Very easy, just try to understand, listen. Gross profit ratio formula is gross profit by net revenue from operation into 100. Whatever ratio will be calculated under the profitability ratio, everything will be calculated by multiplication of 100. So answer will be coming by percentage. Suppose in the question you cannot expect that the gross profit will be given 20,000 and net revenue from operation will be given 2 lakhs, and I will be asked to calculate the gross profit ratio. That type of sum we cannot expect, because every student can do this. Very easy, that is. So question is given to the students in such a manner that the gross profit directly may be given in the question, may not be given. So in any way
through any clue, the students has to calculate the gross profit amount and net revenue from operation. That means revenue from operation minus revenue return. Revenue return means sales return, and revenue from operation means cash revenue from operation plus credit revenue from operation. Suppose in the question given cash revenue from operation is 50,000 and it is given that the credit revenue from operation is 70% of total revenue from operation. तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 70% अगर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और जो कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50,000 दिया हुआ है वो तब 30% का बराबर का है। तो एज पर 30% अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50,000 है तो 70% के बराबर का कितना निकलेगा, निकल जाएगा यूनिटरी मेथड में क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकल गया। अब क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो निकलेगा उसके साथ कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को प्लस करेंगे, ऑटोमेटिकली रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। और रेवेन्यू रिटर्न अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है वही नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। बात फिर रह गया ग्रॉस प्रॉफिट वेरियस तरीके से आ सकता है। आपको ओपनिंग इन्वेंटरी दे दिया, परचेज दे दिया, डायरेक्ट एक्सपेंस दे दिया एक दो आइटम, क्लोजिंग इन्वेंटरी दे दिया, तो फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो निकला उससे अगर हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को माइनस करते हैं तो फिर ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आएगा। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या है, या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को ही कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलता है। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला क्या है, हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो में लगा था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। उसमें फॉर्मूला क्या था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंस कौन कौन सा है ये पहले डिस्कस किए थे। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में जो सब एक्सपेंसेस आता है सारा का सारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, जैसे वेजेस, कैरेज इनवर्ड, मोटिव पावर, इंपोर्ट ड्यूटी, गैस, फ्यूल, कोल, वाटर, ये सब हो जाता है डायरेक्ट एक्सपेंस। तो ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंस ऐड होगा, फिर क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा या क्लोजिंग इन्वेंटरी माइनस होगा। दैट विल बी द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। अब ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट ऊपर में बिठाएंगे, नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे, अमाउंट इनटू 100 करेंगे, परसेंटेज में आ जाएगा। दैट इज कॉल्ड द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। नेक्स्ट इज कमिंग फॉर द ऑपरेटिंग रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, RFO, दैट इज रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस ऑपरेटिंग इनकम बाय नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। तो देखो यहां पर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो आ गया फॉर्मूला में, ये इट इज नॉट न्यू थिंग, बट ऑपरेटिंग एक्सपेंस और ऑपरेटिंग इनकम जो आया ये थोड़ा सा नया चीज है। अब थोड़ा सा सुनना पड़ेगा इसके लिए। ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इससे पहले हम लोग 11 में फाइनल अकाउंट किए थे, फिनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट किए थे, पीएल अकाउंट किए थे। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट साइड में सारा डायरेक्ट एक्सपेंस आता है और ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड में डायरेक्ट इनकम आता है, जो सेल्स बोलते हैं हम लोग उसको। सेल्स मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और पीएल अकाउंट जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसका डेबिट साइड में आता है सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस और क्रेडिट में आता है सारा इनडायरेक्ट इनकम। अब ये जो ट्रेडिंग अकाउंट है
इसका डेबिट में डायरेक्ट एक्सपेंस, डेबिट क्रेडिट, इसका डेबिट साइड में डायरेक्ट एक्सपेंस आता है, यहाँ पे डायरेक्ट इनकम आता है। और पीएल अकाउंट का डेबिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम आता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है, सॉरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है डेबिट साइड में, और इनडायरेक्ट इनकम आता है क्रेडिट साइड। ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में जितना डायरेक्ट एक्सपेंस है सबका सब ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंस मस्ट बी द ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम मस्ट बी द ऑपरेटिंग इनकम। लेकिन सवाल यह है कि पीएल अकाउंट का डेबिट में जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंस आता है, जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं हम, सैलरीज, रेंट, कमीशन, मतलब कमीशन पेड, इंटरेस्ट पेड, ये सारा का सारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। लेकिन इनमें से कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, इसको ध्यान रखना है। जैसे कि सैलरीज, रेंट, कमीशन, ये तीनों ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, लेकिन इंटरेस्ट पेड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक उसी तरह इनडायरेक्ट इनकम का भी एग्जांपल अगर लिया जाए, जैसे कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सबका सब इनडायरेक्ट इनकम है। लेकिन इनमें से कमीशन रिसीव्ड हो जाता है ऑपरेटिंग इनकम, और ये दोनों जो हैं, रेंट रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये दोनों हो जाता है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अब ये तो गया एग्जाम्पल, लेकिन क्यों ये ऑपरेटिंग इनकम है, क्यों ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, कि क्यों ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, क्यों ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, ये इसको कैसे ख्याल रखेंगे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस आखिर बोलता है किसको? द एक्सपेंसेस व्हिच आर मेट एंड व्हिच आर directly or indirectly related with the day-to-day operation of the business, that is called the operating expense। जिस एक्सपेंस को देख के पता चलेगा कि हमारा बिजनेस चल रहा था, तभी जाके ये एक्सपेंस हो रहा है। जैसे कि सैलरीज, एम्प्लॉइज को सैलरी दिया जा रहा है, इसका मतलब बिजनेस चल रहा है, तब एम्प्लॉइज को सैलरी दिया जा रहा है। कमीशन पेड, जरूर हमारा प्रोडक्ट कोई सेल करवा रहे हैं तब जाके हम कमीशन दे रहे हैं उसको, तो हमारा बिजनेस ऑपरेट हो रहा है। रेंट पेड, हम किसी का दुकान को भाड़ा लेके बिजनेस कर रहे हैं, अब बिजनेस अगर नहीं कर रहे हैं तो हम रेंट कैसे दे रहे हैं, इसका मतलब रेंट पेड का मतलब है ये जरूर ऑपरेट हो रहा है बिजनेस। लेकिन इंटरेस्ट पेड, हम किसी से लोन लिए थे, बदले में इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, लेकिन हमारा बिजनेस ऑपरेट हो चाहे ना हो, वो इंटरेस्ट हमको पे करना ही है। इसीलिए इंटरेस्ट पेड इज नॉट द ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इट इज द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। लाइक दैट कमीशन रिसीव्ड इज द ऑपरेटिंग इनकम। क्यों? हम किसी और कंपनी के का प्रोडक्ट को हम सेल कर रहे हैं, और जितना सेल करेंगे उसके ऊपर हमको कमीशन मिल रहा है, तो मेरा बिजनेस जरूर चल रहा है, तब जाके हमको कमीशन मिल रहा है। सो कमीशन रिसीव्ड इज द ऑपरेटिंग इनकम। लेकिन हम अगर किसी को लोन दिया, वहां से इंटरेस्ट मिला मेरे को, तो हमारा बिजनेस ऑपरेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके साथ ये इंटरेस्ट रिसीव्ड का कोई कनेक्शन नहीं है। इसलिए इंटरेस्ट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। लाइक दैट रेंट रिसीव्ड, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम। देखो यहाँ पे रेंट बहुत खतरा चीज है। रेंट पेड ऑपरेटिंग एक्सपेंस, रेंट रिसीव्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्यों?
रेंट पे कर रहे हैं, मतलब हम भाड़ा घर लेके रेंट पे कर रहे हैं, जरूर हमारा बिजनेस चल रहा है तब जाकर रेंट पे कर रहे हैं, ये एज्यूम किया जा रहा है, इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, रेंट पेड। लेकिन हमारा बिजनेस का 4 घर है, चारों घर मेरा बिजनेस के नाम पे है। एक घर बिजनेस के लिए कुछ यूज ही नहीं होता है, तो वो घर हम किसी को भाड़ा में दे दिए, तो वहाँ से इंटरेस्ट रिसीव जो हो रहा है, वो इंटरेस्ट रिसीव तो हो रहा है बिजनेस में, लेकिन उस इंटरेस्ट रिसीव के साथ मेरा बिजनेस चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। सो रेंट रिसीव्ड इज द नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इस तरीके से थोड़ा सा ऑपरेटिंग इनकम, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इसको समझना है, इसका एग्जाम्पल को समझना है, तब जाके आपका ये ऑपरेटिंग रेशियो बनेगा। तो ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये हम लोग जानते थे सॉरी उसके बाद प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस, मतलब यहाँ पे कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस? ट्रेडिंग अकाउंट में जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, ट्रेडिंग अकाउंट का डेबिट में जो डायरेक्ट एक्सपेंस है, सारा डायरेक्ट एक्सपेंस ही ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, जैसे कि वेजेस, कैरेज, ये सब। लेकिन वो सब आपका नहीं आएगा ऑपरेटिंग एक्सपेंस में यहाँ पे। क्यों? क्योंकि वो डायरेक्ट एक्सपेंस भी है और वो डायरेक्ट एक्सपेंस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला के अंदर ही आ चुका था, इसलिए वो नहीं आएगा। ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस मतलब कौन सा ऑपरेटिंग एक्सपेंस का बात कर रहे हैं? पीएल अकाउंट के डेबिट में जो कुछ ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस आएगा प्लस, और पीएल अकाउंट का क्रेडिट में जो कुछ ऑपरेटिंग इनकम होता है वो ऑपरेटिंग इनकम यहाँ पे माइनस होगा और नीचे डिवाइड होगा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से और मल्टीप्लाई होगा 100 से। दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग रेशियो। हाउ द बिजनेस इज बीइंग ऑपरेटेड, इन व्हिच प्रॉफिट मैनर और नॉट, दैट is calculated and that is assumed, that is observed through this type of the ratio. So in this episode I have discussed 2 types of the profitability ratio. One is the gross profit ratio and another is the operating ratio. So much sums are given in the books. Please observe that in the illustration part and do from the practical also, and be prepared for these 2 types of the ratios. I will be coming in the next episode with the next type of the profitability ratio. Thank you very much.